Hello everyone, welcome you all to this webinar which is around IoTM Innovator of the Month. My name is Mukul Sagar and I'll be your host today and telling you about everything about this competition and how we are going to participate in this. Till the time, what I want from you guys is please write down your name along with the class and the school name in the chat section, in the comment section, so that I can get introduced to you, and by the time we'll wait for few more participants to join and then we'll start. Okay, great. So please write down your name, class and school in the chat section and make sure you are sending it to everyone. Okay, very good. I'm getting Sharbia Malwankar, very good. Riyansh, Advait, very good. Okay, you can just send me, if there is no option for everyone, you can just send your messages or comments to me. Great. We have Pranav, we have Biraj, we have Shan with us. Arav Datta, very good. Rashmita, very good. Mother Schools Global. And DAV Public School. We have someone from DLDAV, Manav Rachna, Indira National School. Okay, great. Okay, can you also write down like which Avishkar product have you used earlier? Okay, either the Avishkar kit, robotics kit, or have you ever taken the course of maker board or maybe app development? Just write down whatever kit. Very good. So Arav has the maker board kit. Very good. And all of you, please write down which Avishkar product have you used earlier. So Rashmita has the Avishkar Robotics Pro Kit. Very good, Rashmita. IoT course. Riyansh has the IoT course. Very good. Sharvia has the Pro Kit. Okay. Riyansh has Makerspace. Okay. Very good. Rashmita, I am using it taking classes. Very good, Rashmita. Riyansh is on MakerBoard. Okay. Very good. Very good. Okay. So I can see more participants are joining. We'll just wait for them to connect and then we'll start. Sir, I have almost all Avishkar live courses, Robotics Pro Kit, IoT Starter Kit, E-Series Intro Kit. Very good, Arvit. Very good, Rashmita. I can see your kit. Very good. Great. Okay. So I guess we shall start with the class. Starter Kit, Robotics, IoT. Okay. So let me introduce you to this IoTM competition. How many of you know about this IoTM? What is IoTM or Innovator of the Month? Have you ever heard of it? Very good. Arnab has heard of it. Anyone else? You can just raise your hand or write down yes or no. I'm also taking classes from Avishkar. Very good. Sharvia have heard about it. Okay, very good. Meher has heard about it. Advait. Shan does not know. Advait no. Riyansh knows. Pranav knows. Okay, very good. So let me just share my screen with you guys. Okay, and I'll tell you what is IoTM. Okay, so I'll just share my screen. Yeah, I hope my screen is visible. Is it visible? Can anyone show me a thumbs up if it is visible? Very good. Thank you, Arav. So IoTM is basically a competition which we conduct every month on our Avishkar platform. This competition is for you, students like you who participate in our courses, who participate with our in our competition, in our challenges, or whoever has our Avishkar product. Okay, so anyone from Avishkar ecosystem, कोई भी अगर हमारे Avishkar ecosystem में आता है, उसके पास कोई भी kit है,
someone has any kind of product from Avishkar, they can participate in this IoTM competition. Okay, so this time in the month of March, we are launching this competition with a theme name called Pause the Plastic. Maybe you have seen this name or heard this name, कहीं पे फेसबुक पे देखा होगा शायद से, या फिर आपने व्हाट्सएप पर आपके पास मैसेज आया होगा, या फिर यू हैव सीन इट ऑन दी इंस्टाग्राम समवेयर, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा. वी हैव बीन डूइंग मार्केटिंग ऑफ दिस थिंग. वेरी गुड. सो पॉज द प्लास्टिक थीम. आई गेस प्लास्टिक सबको पता है क्या होती है, राइट? एवरीवन नोज प्लास्टिक एंड वी ऑल नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराउंड प्लास्टिक्स, है ना? प्लास्टिक से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बट समहाउ वी यूज प्लास्टिक्स इन आवर डेली लाइफ. बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हर एक चीज प्लास्टिक से ही बनी होती है. सो दिस इज हाउ दिस कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट क्रिएट एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लास्टिक. जो भी हमारे अराउंड प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स है, उन सबको हमें सॉल्व करना है अपनी किसी भी तरीके का सॉल्यूशन निकाल के. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा. जैसे ये मैंने कुछ एक चीज बनाई थी. ओके, ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था फॉर दिस IoTM. यू विल बी सीइंग दिस वीडियो ऑन योर सोशल मीडिया. आपको मिल जाएगी मंडे ट्यूसडे में, आपके पास आने लग जाएंगी ये वीडियोस और भी प्रोजेक्ट्स की. तो इस तरीके से कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं जो हमें किसी तरीके से something that can help us with the problems of plastic, either to resolve them or to reduce them. Okay, everyone, is that clear? Very good, very good. So moving on to the next slide. Yeah, this thing. So why we are doing this? Because we believe in you guys. We know you are super smart and you know how to make cool robots, cool projects, great apps. So we believe in you and we know that you can be the next great innovator who can change the world with their innovation. Okay, now what do you need to do is you need to just create a solution, either a robot or an app or maybe a circuit which can help us with the problems of plastic. Moving forward, what are some common problems of plastic? अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है हाउ मेनी प्लास्टिक आइटम्स डू वी यूज डेली? यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है वैसे तो सामने, बट जरा काउंट करेंगे. एक बार काउंट करते हैं. सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? टूथब्रश, दैट इज प्लास्टिक, राइट? शैम्पू यूज करता है कोई? शैम्पू बॉटल, प्लास्टिक. और क्या यूज करते हैं? राइट डाउन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दो क्या क्या यूज करते हैं, फिर विल काउंट देम. स्टार्ट करते हैं. हंड्रेड्स ऑफ डेली. वेरी गुड. बकेट, one thing, very good. Comment, comb, very good. सारी प्लास्टिक वाली चीजें. पेन, वेरी गुड. प्लास्टिक ग्लास, वेरी गुड. और सोचो. प्लास्टिक स्पून, टूथब्रश, शैम्पू, सोप, बकेट, मग, आर लैपटॉप इटसेल्फ, राइट? और कुछ छोटी छोटी सी चीजें कभी कभार यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल टूथपिक, प्लास्टिक्स की टूथपिक, स्पून्स और कटलरीज आती है जब हम जोमेटो से, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं. आता है ना बहुत सारा सामान. प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स आती है, राइट? ईयरबड्स हम यूज करते हैं, राइट? वी यूज ईयरबड्स. ईयरबड्स में प्लास्टिक होती है. प्लास्टिक स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टीवी, AC, ये सब प्लास्टिक से बना होता है. CDs, राइट? टेप प्लास्टिक की होती है. एग्जैक्टली. सो इसका मतलब तो यार हम सारी चीजें तो प्लास्टिक से बनी यूज करते हैं, है ना? वॉट एवर वी यूज ऑल ऑफ दोज थिंग दैट आर मेड अप आउट ऑफ प्लास्टिक, है ना? सामने रश्मिता दिखा भी रही है. वेरी गुड. शॉपिंग बैग्स. तो कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती होगी, राइट? क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एज यू कैन सी, अगर एक नॉर्मल काउंट बताऊं मैं आपको, वी यूज 15 प्लास्टिक आइटम्स डेली. 15 आइटम्स तो ऐसे होते हैं जो हम डेली यूज करते ही करते हैं. ठीक है, आपने खुद ही बता दिया. बकेट, कॉम, ग्लास, प्लास्टिक कप्स, मे बी पेन, मे बी शैम्पू बॉटल, राइट? स्पून, इस तरीके की चीजें 15 आइटम्स डेली हम यूज करते ही करते हैं, है ना? और इन सब के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? ये तभी नहीं आती जब हम यूज कर रहे होते हैं, तब नहीं आती. जब हम इनको यूज करके फेंक देते हैं, वेन एवर वी यूज देम एंड थ्रो इट अवे इन द गार्बेज ट्रक, आई गेस, या फिर कहीं पे भी, क्योंकि गार्बेज ट्रक से निकलने के बाद भी वो कहीं पे जाता होगा, राइट? ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं नहीं जाता. हमारे घर से वो गाड़ी आती है ना, कचरा वाला आया, गाड़ी निकालो, ऐसा कुछ करके आता है ना, तो वो गाड़ी में हम डाल देते हैं, लेकिन वहां से भी आगे कहीं जाता है. अब उनके बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस? वन बिगर मेजर प्रॉब्लम इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ. आपने देखा है कभी कभार
कभी कभार मे बी यू हैव सीन के कैटल्स और मे बी डॉग्स दे स्वैलो दिस प्लास्टिक फ्रॉम दी आउटसाइड एरिया एंड उनको दिक्कत हो जाती है। कभी किसी ने देखा है? मैंने बहुत देखा है। ऐसा होता है कि गायें जो होती हैं, गाय भैंस जो होती हैं, जो गले में ऐसे, या डॉगीज होते हैं, वो जब गली में ऐसे घूमते हैं तो वो प्लास्टिक खा लेते हैं गलती से, और फिर उसको दिक्कत हो जाती है, या कई लोग, कई जानवर बेचारे मर भी जाते हैं ना। डॉग्स, काउज एज वेल, वेरी गुड। सिमिलरली ह्यूमंस में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लॉन्गर टर्म में आती हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अनदर बिग प्रॉब्लम इज डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ। तो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे वर्ल्ड में। हम क्या करते हैं, अपना सारा वेस्ट जनरेट करते हैं और सारा का सारा वेस्ट है ना ओशियन में जाके डंप कर देते हैं। वर्ल्ड वाइड हर शहर, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, आप ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, चाइना, रशिया, एनी कंट्री, दे जस्ट कलेक्ट ऑल द वेस्ट एंड डंप इट इन द ओशियन। तो होगा क्या? प्लास्टिक तो सारी वहीं चली जाती है ना। और मे बी आपने वीडियोस भी देखी होंगी ऐसी बहुत सारी, या फिर कोई मूवीज भी देखी होगी जैसे फाइंडिंग नीमो, उसमें ऐसी कोई फिश वाली मूवी आती है तो उसमें दिखाते भी हैं प्लास्टिक कंटेनर किसी टॉर्टॉइज के गले में फंस जाता है, या फिर कोई मछली है ना ज्यादा स्वेलो कर लेती है, या फिशिंग नेट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें, वो गले में फंस जाता है सी हॉर्स के। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी हेल्प से है ना, जिनकी मतलब जिनकी प्रॉब्लम से एक्वेटिक लाइफ खत्म होती जा रही है। ठीक है। बाय 2025, डू यू नो दिस, 2025 जब आएगा तो वर्ल्ड में जितने भी ओशियंस हैं उसमें फिशेस से ज्यादा प्लास्टिक होंगी। इतना वेस्ट जनरेट करते हैं हम डेली। कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, राइट। दूसरी चीज क्या है, प्लास्टिक क्लीनिंग मेथड्स जो अभी हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं सोचा, सम पीपल हैव थॉट अबाउट इट कि यार कैसे प्लास्टिक्स को हम रिमूव करें। वो प्रॉब्लम जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो सॉल्यूशन जो है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा खर्चे वाली है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम प्लास्टिक के साथ, कि कैसे उसको रिड्यूस करा जा सकता है। फोर्थ वन इज माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक आज हम लोग सब, हमारे अंदर माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है, हमें पता भी नहीं है कैसे जा रहा है। सम पीपल ईट फिश, सम पीपल ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, और वैसे भी हम बहुत सारा, अब तो और जगह से भी आने लगा है। तो जब फिश खाती है प्लास्टिक और हम फिश को खा जाते हैं, तो वो माइक्रोप्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी जाता है ना। इस तरीके से माइक्रोप्लास्टिक की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और भी क्या होता है, प्लास्टिक बहुत बहुत माइक्रो स्केल पे हो जाता है, तो प्लास्टिक गॉट ब्रेक इनटू वेरी माइक्रो स्केल पार्टिकल्स एंड वी कंज्यूम इट डेली। तो वो बहुत प्रॉब्लम है। और फिफ्थ बड़ी जो प्रॉब्लम है दैट इज अबाउट मिसमैनेजमेंट। जो डिस्पोजिंग सिस्टम है, कोई भी कहीं पे भी कचरा फेंक देता है, होता है ना, ये देखा होगा, प्लास्टिक के कचरे आपको कहीं पे भी कोई भी फेंक देता है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर इफ आई सम इट अप, दीज आर 5 मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच वी नीड टू सॉल्व थ्रू आवर सॉल्यूशन। कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इतना क्लियर है सबको? प्लीज शो मी अ थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द रियल टाइम स्टैट्स। 2021 में हम लोग सब घर में ही थे ऑलमोस्ट, है ना। लॉकडाउन लगे हुए थे, स्कूल्स से थे। इतना, कितना है ये नंबर्स, मुझे तो कैलकुलेट करना भी नहीं आएगा, इतने बड़े नंबर, और मल्टीप्लाई बाय 1000 टन्स। इतनी प्लास्टिक जनरेट करी है पूरे वर्ल्ड ने, अराउंड 6 बिलियन टन। एंड इंडिया की अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं तो 3 मिलियन टन। इतना प्लास्टिक हम डेली जनरेट करते हैं रोज। तो अगर साल के उससे हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ज्यादा निकलेगा। ठीक है, ये इतना इतना ज्यादा हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो अब सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए? सॉल्यूशन हमें निकालना है पार्टिसिपेट करके आईओटीएम में। कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, हु ऑल कैन पार्टिसिपेट, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? I guess this is your age group. Anyone from age group 5 to 16 can participate in this competition. You can use tools, आविष्कार टूल्स, या फिर कोई ओपन सोर्स मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल आपने MIT यूज करा होगा, मे बी सम पीपल यूज कॉर्डुलर, या फिर code.org, मे बी यू हैव यूज्ड इट, स्क्रैच आपने यूज करा होगा। ये सब ओपन सोर्स मटेरियल है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, जो फ्री है, आपको जिसके पैसे नहीं देने होते। ठीक है, तो ये टूल्स यूज कर सकते हो। एंट्रीज, मल्टीपल एंट्रीज आर अलाउड। आप एक प्रोजेक्ट सबमिट करो, 2 प्रोजेक्ट सबमिट करो, 3 प्रोजेक्ट सबमिट करो, इट्स अप टू यू। एज मोर एज as more as projects you submit, the chances of winning will increase. Okay, so moving forward, किस तरीके की चीजें हो सकती हैं? I was telling you that we can solve these problems with our kids. First one is robot. ये रोबोट क्या, रोबोट ये क्या काम करता है? जल्दी से मुझे ये बताओ, कितने लोगों ने बीच विजिट करे हैं? बीच या फिर कोई रिवर साइड विजिट करी है, लेक साइड विजिट करी है? प्रणव ने करी है,
अद्वित ने नहीं करी, रेयांश ने करी है, वेरी गुड। राजवर्धन ने करी है, वेरी गुड। रश्मिता ने भी करी है, ओके। शर्विया ने विजिट करा है काफी टाइम, रेयांश ने बहुत बार विजिट करा है। कभी देखा बीच पे कितनी सारी प्लास्टिक्स पड़ी होती हैं, बहुत सारा कचरा होता है। देयर इज अ lot of plastic on the beaches. So this robot is made by someone else. इन्होंने क्या करा है, they have created this robot as a solution to curb the problem of plastic. What they have done is they have created a robot to clear the sand. वो क्या करते हैं, जैसे आप देख भी पा रहे हो, इफ आई एनोटेट मैं कर देता हूं जल्दी से, and yeah, so this area, sorry, draw ये एरिया, if you can see the highlighted area, this area is actually a collector bin. What it is doing is, कभी किसी ने वो प्रोसेस देखी है घर पे, हम लोग है ना ऐसे एक छन्नी बोलते हैं उसको, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, फिल्टर बोलते हैं उसको शायद इंग्लिश में, बट उसमें कुछ चीज भर के उसको जब वाइब्रेट करते हैं उसमें से सारी चीजें, छोटे छोटे पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और जो कचरा होता है वो उसी के अंदर आ जाता है, राइट। वो फिल्ट्रेशन मेथड इन्होंने यूज करा है, सी, वेरी गुड, थैंक यू शिवांग, एंड थैंक यू whoever answered, Reyansh, I guess, yeah. So this robot is actually a robot which can clear the sand using the method of sieving. Okay, so what it does is basically collect all the sand, उसको वाइब्रेट करता है अपनी सीव को, एंड जो भी सैंड होता है वो सारा बाहर निकल जाता है, एंड सारा का सारा प्लास्टिक कलेक्ट हो जाता है। सो दिस कुड बी अ सॉल्यूशन। आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन भी बना सकते हो, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हो जो प्लास्टिक को कलेक्ट करे, अपना रोबोट ऐसा बना सकते हो, कैन कलेक्ट, क्रिएट अ रोबोट विच कुड बी आई गेस अ वेस्ट कलेक्टर रोबोट, जो वेस्ट कलेक्ट करके लेकर आए। या फिर कई बार ऐसा होता है, कई कई जगह पे प्लास्टिक अटक जाती है, अ रोबोट, यू कैन मेक अ रोबोट विच कैन रिमूव दैट प्लास्टिक, ओके, समथिंग विच यू कैन कंट्रोल रिमोटली में भी, ऐसा भी कर सकते हो, या वायर्ड कंट्रोल भी हो सकता है आपका रोबोट, बट इट शुड आइदर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक और रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक। ऐसा देखा है कभी आपने, कैन क्रश, कैन्स होते हैं जिसमें हम पेप्सी, कोला, ये सब सारी चीजें आती हैं, उनको क्रश करने की मशीन्स होती हैं। हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी प्लास्टिक ली और उसको क्रश करके छोटा सा बना दिया, ताकि वो बहुत एक कॉम्पैक्ट से फॉर्म में आ जाए, हम उसको अच्छे से पैक कर पाए, रख पाए कहीं, राइट। सो उस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एप्स दैट कैन आइदर गाइड यू अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ प्लास्टिक, या फिर आपको इन्फॉर्म कर सके यूजर्स को, या फिर मेजर कर सके आप कितना प्लास्टिक यूज करते हो। अभी जैसे हमने मेजर करा था थोड़ी देर पहले, सारे आइटम्स की लिस्ट बनाई और फिर कैलकुलेट कर लिया था, है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक ऐप मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने बनाई है, वो एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे अभी, एज आई वाज टॉकिंग टू यू 8th को। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, चेंज द स्क्रीन, इज इट विजिबल? या सो एक बड़ी छोटी सी गेम है ये। ओके, रश्मिता इज आस्किंग, रश्मिता सर, कैन वी मेक अ बॉट दैट सेंस अ वेस्ट एंड कीप इन इट? यस रश्मिता, वी कैन क्रिएट अ रोबोट विच कैन सेंस द वेस्ट मटेरियल। आप उसको आईआर से भी बना सकते हो, या फिर आप उसको दूसरे अल्ट्रासोनिक सेंसर से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ बना सकते हो। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस गेम, आई विल गिव इट टू यू ऑन 8th, ये सोशल मीडिया पे हमारे आ जाएगा। दिस इज अ प्लास्टिक गेम, जिसमें क्या होगा, नीचे देखो एक्वेटिक लाइफ है, एंड ऊपर हमारे पास कुछ प्लास्टिक है। दिस प्लास्टिक विल ट्राई टू फॉल डाउन, एंड हमें उनको टैप करना है और प्लास्टिक लाइफ को बचाना है। जितनी ज्यादा हम टैप करेंगे, जितना ज्यादा प्लास्टिक सेव करेंगे या रिमूव करेंगे, उतना ज्यादा हमारा स्कोर बनता जाएगा, एंड वी विल हैव मल्टीपल लेवल्स इन इट। एंड अगर कोई भी प्लास्टिक नीचे रीच कर गया और हमारी एक्वेटिक लाइफ को टच करता है, तो देन द गेम विल बी ओवर। एक बेसिक सी गेम है ना। लेकिन किसी, अगर हम बच्चे को देते हैं, किसी भी ऐसे लोगों को देते हैं जिसको नहीं पता एक्वेटिक लाइफ के बारे में, या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं प्लास्टिक को, इट विल इन्फॉर्म द यूजर इन सम वे अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ ऐसा ही कोई सॉल्यूशन बनाना है, हम ऐसा भी बना सकते हैं जो इन्फॉर्म करता हो किसी यूजर को, ठीक है। कुछ ऐसी मशीन, कुछ ऐसे एप्स, कुछ ऐसी वेबसाइट भी हो सकती है आई गेस, जो आप बनाना चाहते हो, दैट कैन एक्चुअली इन्फॉर्म द यूजर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ प्लास्टिक, या फिर कितना वो प्लास्टिक यूज करते हैं, वैसा कुछ आप बना सकते हो। यस मेहर, वी कैन ऑल्सो मेक अ स्मार्ट डस्टबिन
स्मार्ट डस्टबिन जो आपको कलेक्ट करे एंड आपको इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। सो ये था। इसके बाद इफ आई कम बैक, या सो हमने एप्स की बात कर ली, हमने रिवॉर्ड्स की बात कर ली। थर्ड वन इज इंटरेक्टिव टूल्स। तो इंटरेक्टिव टूल की मैं एक वीडियो दिखा देता हूं जल्दी से आपको। क्या इंटरेक्टिव टूल हो सकता है? जस्ट गिव मी 1 second, आई शेयर माय स्क्रीन। Yeah, I guess my screen is visible. Is it visible? Yeah. So see, this is a kind of smart dustbin as you were asking. एक smart dustbin है. We have used the maker board and the IR sensor, and what it is showing is ये एक बास्केटबॉल गेम की तरीके से हमने अभी यहाँ पर पिच करा हुआ, बट ये एक स्मार्ट डस्टबिन भी बन सकता है हमारा. वट एवर वेस्ट यू विल पुट इन, इट विल इन्फॉर्म यू, है ना, कितना वेस्ट आपने कलेक्ट कर लिया. एक आइटम, 2 आइटम, इट विल शो यू द नंबर. अभी दोबारा से रीलोड होगी ये वीडियो, यू विल सी. सी 0 काउंट है अभी, 1 ग्रीन लाइट आई, 1 स्कोर चेंज, 2. सी, ओके. सो दीज आर कॉल्ड इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस, ओके, या फिर इंटरैक्टिव टूल्स हम इनको बोलते हैं. तो हम कुछ ऐसा इंटरैक्टिव टूल भी बना सकते हैं जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के काम आता है. एक बहुत पहले मैंने काम करा था किसी एक प्रोजेक्ट पे, एंड वो जब प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, कॉलेज की बात है, वो ऐसा डस्टबिन बनाया था. तब वाईफाई होते नहीं थे, इतना जल्दी वाईफाई नहीं होता था, कहीं पे मिलता नहीं था, और घरों में भी नहीं होते थे. इंटरनेट की भी बहुत कमी थी, 4G भी नहीं आया था, ऐसा टाइम था. बट देन वी यूज टू क्रिएट देन वी क्रिएटेड अ डस्टबिन जिसमें अगर कोई भी प्लास्टिक वाला कचरा डालता था तो एक थोड़ी देर के लिए उसको 15 मिनट के लिए फ्री वाईफाई मिलता था, जिससे वो अपने ऐप्स अपलोड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है. वो भी एक इंटरेक्टिव टूल था. इस तरीके की चीजें भी बना सकते हो आप. मे बी एक वेंडिंग मशीन ऐसी बना सकते हो, एक ऐसा कुछ मशीन बना सकते हो जिसमें इफ यू पुट इन द प्लास्टिक वेस्ट, इट विल गिव यू अ कैंडी इन रिटर्न. यू नो, जापान में ऐसी मशीन्स लगी हुई हैं जो जिसमें आप प्लास्टिक बॉटल्स डालोगे तो आपको मेट्रो के टोकन्स दे देता है, जिससे आप फ्री में विजिट कर सकते हो मेट्रो के थ्रू. ओके, सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. हर तरीके के एग्जांपल्स है. आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट. सो ये अगर मैं एक्सप्लेन करूं, दिस इज एक्चुअली अ प्लास्टिक डिटेक्टर. ये मेकर बोर्ड की हेल्प से मैंने बनाया है. यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक कनेक्शन है, सेंसर है. व्हाट इट इज डिटेक्टिंग, ये 2 तरीके के मटेरियल्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है. इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड प्लास्टिक. तो अगर मेटल आएगा तो यहाँ पर अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी, अगर प्लास्टिक होगा तो अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आएगी. दिस इज ऑल्सो एन इंटरेक्टिव टूल, और मे बी अ टूल विच कैन डिटेक्ट प्लास्टिक्स, राइट. हम इसको वेस्ट सेग्रीगेशन जोन्स पर भी लगा सकते हैं. इज इट क्लियर? एनीवन? वेरी गुड, वेरी गुड. सो मूविंग फॉरवर्ड, what are the timelines? Timelines are 1st of March को लॉन्च हो चुका है कंपटीशन. यू ऑल नो दिस. यू कैन राइट नाउ गो एंड पार्टिसिपेट कर लो. मैं अभी दिखाने भी वाला हूँ प्रोसेस क्या है. सबमिशन आप 22 मार्च तक कर सकते हो. यस रियांश, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. 8 मार्च को वी विल लॉन्च प्रोजेक्ट आइडियाज, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना. एक वेबिनार हमने कराया है, एक और वेबिनार होगा आपको हेल्प करने के लिए. I can't ask it in chat. No issue, Reyansh. You can talk to me later. 22nd मार्च को हम लॉन्च करने, हमारी सबमिशन क्लोज हो जाएगी. बट या अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, बहुत सारी पार्टिसिपेशन आती है, तो मे बी वी कैन शिफ्ट द डेट. बट अभी के लिए 22nd मार्च है, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है. एंड बाय 29th ऑफ मार्च यू विल गेट द रिजल्ट्स, जो भी जीतेगा, ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, if you have any questions, go to this website. I'll go to this website and show you how it is looking. So if you go to community.avishkar.cc, this is the competition. IoTM March 2022, March month का competition है. The theme name is Pause the Plastic, as I explained it to you. We have this
थंबनेल ओवर हेयर जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाकी सारे प्रीवियस कॉम्पिटिशन है हमारे पास. इफ यू गो टू नो मोर, participate now, if you will click on participate now, it will take you to the participation option. Okay, if you want to know, pause the plastic की ये कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप जान सकते हो. वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ वीडियो फॉर यू, सो लेट्स प्ले दैट वीडियो एंड सी. Just reshare it with the music, share sound. So this was the video. Prizes की अगर बात करें, we will have 1 grand winner, 2 runner ups and 3 honorable mentions. These will be the prizes. What are the rules? Few rules are there. Project guidelines, कैसे कैसे solutions आप बना सकते हो, किस तरीके का project आप बना सकते हो. Material guidelines, I told you, you can use any DIY or art craft material. Cardboard use कर सकते हो, कोई भी open source material use कर सकते हो, आविष्कार का कोई भी product आप use कर सकते हो. ठीक है. उसके अलावा वीडियो गाइडलाइंस है कुछ. तो बेसिकली करना क्या होगा, व्हाट यू नीड टू डू इन दिस कंपटीशन इज यू नीड टू एक्चुअली फॉलो सम गाइडलाइंस टू क्रिएट दैट वीडियो. विद व्हाट यू हैव टू क्रिएट द वीडियो ऑफ योर प्रोजेक्ट. पहले प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एंड देन यू हैव टू सबमिट इट ऑन दिस पोर्टल. दीज आर फ्यू गाइडलाइंस फॉर यू. जितना आप इनको फॉलो करोगे उतने आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे. ओके, क्या चीजें हैं, आई गेस सबको पता होगा. लैंडस्केप मोड क्या होता है, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड क्या होता है, किस किस को पता है? रेज योर हैंड और थम्स अप, वॉट एवर. ऑलमोस्ट सबको पता है, बता देता हूं फिर भी. दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप मोड. ठीक है. मैंने, अगर आपको मेरी स्क्रीन मैं दिख रहा हूं, मैं आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग. इफ यू कैन फोकस ऑन मी इन द जूम विंडो. अगर मैं अपने फोन को ऐसे होल्ड करता हूं, दिस इज कॉल्ड लैंडस्केप. अगर मैं ऐसे होल्ड करता हूं तो पोर्ट्रेट. हमें लैंडस्केप मोड में वीडियो शूट करनी है. ओके, एंड मेक श्योर वेन एवर यू आर रिकॉर्डिंग द वीडियो, यू आर रिकॉर्डिंग इट इन HD. ओके, ऐसे हमें ब्लर्ड वीडियो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ब्लर्ड वीडियो आएगी तो वी कैन, जजेस जो होंगे वो आपकी वीडियो को जज नहीं कर पाएंगे, उसमें अच्छे से दिखेगा नहीं, है ना. सो वीडियो रेजोल्यूशन और ओरिएंटेशन के बारे में ध्यान रखना है आपको. लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग हो अच्छे से, ऐसा ना हो कि कोई डिम कमरे में आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो. अच्छे से लाइट अप कमरे में करो. कहीं से अगर सनलाइट आ जाती है, दैट इज वेरी गुड. इफ यू हैव अ रूम वेयर यू हैव अ विंडो जहां से सनलाइट आ सकती है, नेचुरल लाइट आ सकती है, प्लीज यूज दैट रूम, क्योंकि उसमें सबसे अच्छे तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होती है. ठीक है. व्यू का मतलब क्या है? व्यू का मतलब ये है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, सो आप हर तरीके से, अब लेट्स से आई एम यूजिंग दिस फोन. ओके, सो मैं हर एंगल से इसको रिकॉर्ड कर लूं. ठीक है, 360 डिग्री से, ताकि मुझे हर पार्ट दिख जाए. जो भी जज होगा उसको हर पार्ट दिख जाए कि आपने क्या बनाया अपने रोबोट में या प्रोजेक्ट में. ओके, अगर आपका कोई ऐप बनाया आपने, लेट से डिजिटल है, तो उसकी हर स्क्रीन आपने वीडियो में इन्वॉल्व कर दी व्हेन एवर यू आर रिकॉर्डिंग द स्क्रीन. ओके, एंड कंटेंट क्या आने वाला है ये भी आपको ध्यान रखना है. सो कंटेंट में देखो, ये 3 चीजें हैं जो आपको बतानी है, वरना क्या होगा, आपकी वीडियो आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, कोई और भी यूज कर सकता है ना. इफ यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन द वीडियो दैट I am, let's say Advait is introducing, I am Advait, I am from this school, my age is this and I have created this solution and this is how it will solve the problem of plastic. है ना. जैसे अगर मैं अपने बारे में एक्सप्लेन करूं, हेलो माई सेल्फ मुकुल सागर, let's say I'm in school, I'm from school DAV, my age is let's say 17 and I have created this project to solve the problem of plastic. This is a plastic detector and this is how it's solved. ठीक है, इतनी ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वरना होगा कि अगर आप सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दोगे तो कल को कोई और भी यूज कर सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा, है ना. राइट, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करवाना उस वीडियो में. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, चलते हैं हम कैसे पार्टिसिपेट करना है. सो इफ आई क्लिक ऑन पार्टिसिपेट नाउ, इट विल आस्क मी फॉर लॉग इन. आई लॉग इन. आपको भी ऐसे ही करना होगा. अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो आप आविष्कार की वेबसाइट पे.
अभी ये जैसे मेरे से स्कूल वगैरह वाली चीजें मांग रहा है, मैं यहाँ पर भर देता हूँ, अभी कोई भी स्कूल डाल देते हैं, लेट्स से दिस, एंड आई एम मैं मेकर. ओके, नेक्स्ट. kit code, I don't have the kit code. Save. Again I'll go to community.avishkar.cc. I'll go to no more and submit. अब वो participate का बटन जो था, I have participated in this competition, so it is changed now to submit button. If I go to submit, यहाँ पर आप देख सकते हो अगेन डिटेल्स उसके बारे में. ठीक है, कुछ और डिटेल्स हैं, मोस्टली गाइडलाइंस के बारे में यहाँ पर. एंड सबमिट एंट्री, सो गो स्क्रॉल डाउन एंड सबमिट एंट्री. सबमिट एंट्री में ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको फॉलो करनी है, फिल भी करनी है. हाँ, क्या करना है, टाइटल डालना है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना मशीन बनाई है तो प्लास्टिक डिटेक्टर मशीन, मैंने ये टाइटल दे दिया. कुछ भी एक इंटरेस्टिंग सा टाइटल दोगे तो बढ़िया रहेगा. ठीक है, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ. मशीन की जगह कुछ और लिख दो. ठीक है, प्रोटोटाइप, सिनोनिम्स ढूंढ सकते हो गूगल पे चीजों के एंड उसको यूज करो. ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन डाल दो उसके बारे में. अभी मैं कुछ भी डाल रहा हूँ बट यू हैव टू एंटर अ वैलिड डिस्क्रिप्शन. हाउ योर बेसिकली व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर प्रोजेक्ट. ओके, एक फोटो डालनी है आपको, एक फोटो क्लिक करनी है अच्छे से अपने प्रोजेक्ट की. एंड एड अ थंबनेल, आप उसको एडिट भी कर सकते हो जितना अच्छा, जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं ना, यूट्यूब वीडियोस के देखते होगे, वैसे ही एक अच्छा सा थंबनेल एडिट करके भी बना सकते हो और नॉर्मल पिक्चर भी डाल सकते हो. कोलैबोरेटर्स, इफ समवन हैज हेल्प्ड यू इन दिस, तो आप उसको कोलैबोरेटर को सिलेक्ट कर सकते हो. जैसे कुछ लिस्ट यहाँ पर है, अगर किसी मेंटर ने आपकी हेल्प करी है फ्रॉम एनी ऑफ द कोर्स, ओके, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो. नहीं तो जरूरी नहीं है. किट्स कौन सी डाली है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, वट एवर किट यू वॉन्ट टू सिलेक्ट. एंड टैग, टैग किस तरीके के डालने हैं, अगर रोबोट का प्रोजेक्ट है तो रोबोटिक्स, जितने ज्यादा टैग्स डालोगे उतना बेटर है. ओके, एंड देन एड द वीडियो, क्लिक ऑन द वीडियो, अपलोड इट. साथ ही साथ व्हाट यू नीड टू डू इज ऑलवेज अपलोड योर वीडियो टू यूट्यूब एज वेल. और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद उसका लिंक यहाँ पर डाल. एंड इफ यू हैव एनीथिंग एल्स, लाइक आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करा है कि व्हाट इज दिस रोबोट और व्हाट इज दिस मशीन, हाउ इट इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम, योर इंट्रोडक्शन, एनीथिंग, आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हो एंड देन सबमिट इट. जब ये सबमिट कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाएगा. ओके, सो लेट मी गो टू द क्वेश्चंस. Arav Datta is a vlogger, very good. Can we do this in the phone? Yes, Rashmita, we can do it from phone as well. Meher Puri sir, we have to submit idea or model. Meher, you have to submit the model, actually a video at the later stage. Participate करने के टाइम पे आपको कुछ भी नहीं करना, participate बटन पे क्लिक करना है. But after 22nd of March, the submission will be closed. So whatever you have to do it before it. Okay, आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है. You have to record a video of your robot. जो भी आप बनाओगे, सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा. ठीक है, कुछ बनाना है आपको, आप उस आइडिया को या तो ऐप बना सकते हो, रोबोट्स बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. ठीक है, इफ यू हैव आइडिया अराउंड सम, कोई ऐसा थ्योरी है आपकी, उसका डॉक्यूमेंट बना के भी अपलोड कर सकते हो आप, और उसके बारे में एक वीडियो बना सकते हो. ठीक है, sir, can you please share the recording link after the session? Yes, Meher, we can do it. Okay, so yeah, this was everything about the competition. Do you have any other question, guys? Anyone? किसी भी चीज को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, ओके, आरव डज नॉट. व्हाट आर द प्राइजेस? प्राइजेस की इंफॉर्मेशन अभी आपको सोशल मीडिया से मिल जाएगी. वी आर सून गोइंग टू लॉन्च अ पोस्ट जहां पर आपको ग्रैंड प्राइजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके, यस रश्मिता, प्लीज आस्क द क्वेश्चन. Bye, Advait. Can we use stuff like AMS, like Scratch? Yes, Kshitiz, we can use Scratch. You can use MIT App Inventor. You can use Codular to make your game or maybe make your app. Whatever you want to make. If you want to make a website which can somehow help the problem of plastic, आप वो भी बना के सबमिट कर सकते हो. ठीक है, यू कैन यूज एनी ओपन सोर्स टूल. ओपन सोर्स का मतलब यही होता है जैसे जो फ्री टू यूज हो मोस्टली. ठीक है, और जिसकी कोई प्रोप्राइटरी ना हो. ठीक है, या फिर यू हैव टू यूज आविष्कार प्रोडक्ट्स. ओके, can we use animated images or print out to paste on the bots? Yes, you can use animated images in your game or app, और प्रिंट आउट करके आप जितना ब्यूटीफाई करोगे अपने प्रोडक्ट को उतना बेटर है.
You can use cardboard. Yes, you can use cardboard, Arav. You can even Sharvia, you can also use cardboard to beautify your product. You can use 3D printing. If you have a 3D printer or you know someone with a 3D printer, you can use 3D printer. आप टिंकर कैड को यूज कर सकते हो कुछ एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। कुछ 3D प्रिंटेड 3D डिजाइन रिलेटेड आप कुछ डाल सकते हो, प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो उसकी वीडियो बना के। ओके रश्मिता, आप ये वाला क्वेश्चन जो है दैट यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट योर बोर्ड फ्रॉम द फोन, जस्ट पुट इट इन द लेट्स आविष्कार ग्रुप ऑन फेसबुक एंड समवन विल आंसर ओवर देयर, टेक्निकल टीम विल आंसर यू ओवर देयर। ओके Surbi Chabra, is it necessary to use Avishkar kit? If not, then what to fill in the kit number? If you are not using any Avishkar kit, you will find an option of other. आप वहां पर other select कर दीजिएगा. If you cannot see the option of other currently, it will be updated soon, and you can select the other option or maybe the DIY option. Yes, Rashmita, on Facebook there is a group called Let's Avishkar. आप वहां पर उसको upload कर दीजिएगा. Okay. Any other question, guys? Sir, actually I wasn't at home. You can do again. What to do? Tisha, we were actually informing you about the IoTM competition. So there is a competition coming up in which you need to participate and submit your entries in the video form. So you can create a robot. आप robot भी बना सकते हो, app भी बना सकते हो, website भी बना सकते हो, 3D design भी बना सकते हो, कुछ DIY cardboard से related भी कुछ बना सकते हो, circuits भी बना सकते हो, whatever you can think of which can help us in solving the problem of plastic, please submit that. Yes, Sarav, you can use a DC motor. Okay, so if anyone, I'll just write down the link, community.avishkar. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, मैंने चैट बॉक्स में देखो अभी भेजा है लिंक community.avishkar.cc, या तो इसको कहीं पे सेव कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट यू कैन रिमेंबर इट लेटर। community.avishkar.cc बहुत ही आसान वाला लिंक है, बहुत आसान लिंक, ठीक है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट टू गेट इट saved, and you will also find this link on our social media pages, Facebook, Instagram, YouTube पे भी आपको कहीं ना कहीं किसी वीडियो में मिल जाएगा। सो आप कभी भी उनको विजिट कर सकते हो इफ यू एवर फील दैट वहां पर लिंक नहीं है, या फिर आप आविष्कार की वेबसाइट पे जा सकते हो, यू कैन गो टू आविष्कार वेबसाइट एंड गो टू द कॉम्पिटिशंस पार्ट। मेहर जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, in this we can also add our submission. Yes, this is the submission portal. So participation and submission portal are same. First you need to participate please, सब लोग अभी कर लो, सब खोलो ये वाला लिंक और उस पर पार्टिसिपेट कर दो जाके जल्दी से। अब मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो जल्दी जल्दी से कर लो और मुझे डन लिख दो यहाँ पर। जो जो कर लेगा वो जूम में आके दोबारा से डन लिख दे, जल्दी से कर लो, आई विल बी हेल्पिंग यू। किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अभी सॉल्व कर लेंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए कोई सबमिशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो टू दैट लिंक, ओपन द वेबसाइट आविष्कार, लॉग इन एंड क्लिक ऑन पार्टिसिपेट नाउ। Google is turning off when I no Rashmita, you don't need to search it, you need to copy and paste it। जहां पर www.community वाला लिखते हैं ना, वैसे ही आपको ये लिखना है, कुछ भी लिखते हो www.google, जो लिंक बार होता है वहां पर आपको लिखना है। Everyone else, please go to this link and participate now, and when you have clicked on participate now, just write down done in the chat section. Yes, Meher, I can, we will share you the recording link, you will get it on mail. होम पेज पर बैनर भी है, yes, there is a banner on होम पेज। अगर आप आविष्कार की वेबसाइट खोलते हो, होम पेज पे जाते हो तो वहीं पर ही सेम सामने ही होम पेज पे आ रहा होगा। आई विल जस्ट शो यू हाउ इट विल लुक लाइक। सो ये मेरी, मैंने अभी स्क्रीन शेयर करी है, इट विल बी विजिबल टू यू इन फ्यू सेकेंड्स। इज इट विजिबल? Riyansh, can you help me? Is it visible? I can only see you. Okay, Snehal, yes. Okay, thank you, Snehal. Yeah. So as you can see, जैसे ही मैं होम पेज पे गया, ये पॉज द प्लास्टिक है, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक करा, ये मेरे को अपने आप उस वाले पेज पे ले आया, ठीक है।
डायरेक्टली, और यहां से मैं अपनी पार्टिसिपेट नाउ पे मुझे क्लिक करना है। जल्दी से सब लोग कर लो। वेरी गुड, थैंक यू रेयांश। हाँ, लिंक दैट हाउ टू पार्टिसिपेट इन दैट लिंक। रश्मिता, आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस लिंक अगेन। आप पहले इस लिंक पे क्लिक करो और फिर जो इमेज दिखेगी उस पे आपको सबमिट करना है। अगर ये ऐसे नहीं आ रहा तो मैं community डॉट आविष्कार डॉट सी। ओके, स्टॉप शेयरिंग। बाकी किस किसने करा है? सर इट इज बॉट लिंक, इट इज जस्ट शोइंग टेक्स्ट। ओके, इट इज नॉट लिंक। रश्मिता, कैन यू टाइप दिस थिंग इन टू योर लिंक सेक्शन? आप यहां से इसको कॉपी पेस्ट करके वहां पर अपने क्रोम ब्राउजर जो भी आप फोन पे यूज कर रहे हो उसमें पेस्ट कर दो, ठीक है? एनीवन एल्स? क्षितिज, माधव, संची, ऋत्विक, शर्व्या, आरव, आप सबने पार्टिसिपेट करा? अद्विता, दिव्यांशी, आई टैप पार्टिसिपेट बटन। थैंक यू आरव। शर्व्या, थैंक यू। यस, आई कैन सी द रजिस्ट्रेशन काउंट इज इंक्रीजिंग अप, वेरी गुड। जल्दी से बाकी लोग भी कर दो। 19 रजिस्ट्रेशंस, वेरी गुड। 2 लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, और लोग भी जल्दी से कर दो। सर कैन आई जस्ट प्रेजेंट? रश्मिता, नहीं, आई गेस यू डोंट हैव द एक्सेस। रश्मिता, आई जस्ट गिव मी योर ईमेल आईडी। आई कनेक्ट समवन फ्रॉम द टेक्निकल टीम विद यू, ओके? आप अपनी ईमेल आईडी प्लीज यहाँ पर लिख दो, विल गेट इन टच विद यू। यस आरव, यू नीड टू पुट योर जीमेल आईडी। आप जीमेल आईडी से लॉग इन कर लो या वॉट एवर यू हैव, ठीक है? फोन नंबर से कैसे भी लॉग इन कर सकते हो। rashmitasehgal@gmail.com, ओके? ओके रश्मिता, आफ्टर दिस कॉल विल समवन फ्रॉम आवर टीम विल कनेक्ट विद यू टू गेट योर पार्टिसिपेटेड, ओके? Yes, Advita, you can write down. Advita, we don't have access to unmute anyone, so can you please write down in the chat section? आप जैसे भी लिखना चाहते हो लिख दो, चैट सेक्शन में ही बता दो। Okay, so I guess, guys, I guess we have solved all your queries, and I hope you all are interested in participating in this and also motivated. So आप जरूर हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स, फेसबुक चैनल्स, ये सारी चीजें फॉलो करते रहा करो। इस पे आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं। वी ऑल्सो हैव अ ग्रुप विच इज कॉल्ड लेट्स आविष्कार। जो भी क्वेरीज हैं आपकी, इन केस आपको कोई प्रोडक्ट को रिलेटेड क्वेरी है कि आपको कुछ कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप वहां पर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट द आंसर्स। कोई कोड समझ नहीं आ रहा, कोई रोबोट बनाने का तरीका समझना है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज वहां पर लिख सकते हो, ठीक है? आप अपनी एंट्रीज भी वहां पर सबमिट कर सकते हो, एंड या प्लीज पार्टिसिपेट इन IoT, ओके? So thank you everyone for joining. If you guys have any question, please write down in the chat section. Otherwise, we'll just call it off. Instagram ID, okay. Ritvik, just go to the Instagram and you will find out Avishkar Edu. Vishakha ma'am or someone can you write down the what is the handler, Instagram handler? Avishkar भी आप सर्च करोगे तो you will find it. Ritvik. Okay. No, Arav, you cannot log in into Avishkar website using Instagram. You can only log in using the Gmail. Okay. Yes, Snehal has posted the link. I'll just duplicate it and send it to everyone. So मैंने आविष्कार का लिंक भेज दिया इंस्टाग्राम का, आप वहां से कर सकते हो, ओके?
Thank you everyone. Thank you for joining. And we are now calling this session off. So thank you all for joining. And if you have any question, just put it in the chat section. Okay. जो हमारा लेट्स आविष्कार का ग्रुप है वहां पर चैट सेक्शन में आप वहां पर हमें मैसेजेस दे सकते हो. ओके, थैंक यू, बाय बाय.